Hello students, this is Nidhi Maheshwari. Welcome to you in my channel Real Math Master. Today I am going to teach you exercise trigonometry की आपकी last exercise, that is very important exercise. I am going to teach you the advanced method of the trigonometry that is different from your last three exercises. So let's start the exercise, and please don't skip the video because this is very important exercise, and if you see complete video then I assure you that you will come to know about all the exercise, all the contents or the trigonometry of your class 10th. And I hope that you like my videos, and if you like my videos then don't forget to like, share and subscribe the video. So let's get started. देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या होती है. अभी तक हमने हमारे लास्ट क्लासेस में आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, a + b होल स्क्वायर, ये सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं. अभी हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ को इंक्लूड करके वो आइडेंटिटीज़ बनती हैं. कैसे बनती हैं ये देखिए. हमें पता है कि हमारे पाइथागोरस थ्योरम से अभी तक हमने सारे फॉर्मूले लास्ट एक्सरसाइजेज में सारे फॉर्मूले साइन थीटा कॉस थीटा वो सब आपके पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्राइंगल में निकाले थे. अब यहाँ ये आइडेंटिटीज़ भी हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इन साइन थीटा कॉस थीटा को इन्वॉल्व करके बनाएंगे. वो क्या होते हैं, जैसे सपोज आई एम टेकिंग दिस वर्टिसेस एज ए बी सी. सो हियर इज एंगल थीटा, सो इट इज perpendicular for us. This is base and this one is hypotenuse. So what is our Pythagoras theorem? Pythagoras theorem is AC square is equals to AB square plus BC square. Okay, we know our Pythagoras theorem is H square is equals to P square plus B square. Okay, now if I am divide this equation by AC square, अगर मैं इस complete equation को AC square से divide कर दूँ, so is there any problem? Divide the complete equation by AC square. That means ये AC square upon में AC square is equals to AB square upon में AC square plus BC square upon में AC square. So it's AC upon में AC become 1. AB upon में AC, that means perpendicular upon में hypotenuse, and we know perpendicular upon में hypotenuse is sin theta and base upon में hypotenuse is cos theta. Okay, so I can write here sin square theta, and BC upon में AC, that means base upon में hypotenuse is cos square theta. So this is our identity number 1. What it is? Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Okay, so this is your first identity. Now आपके इसके बाद 2 more identities are there, and that we will also calculate that 2 identities by this formulas also, by this formula. So let's have a look how we calculate that 2 identities by this formula. May I divide this equation now by cos square theta. Okay, divide the equation number 1 by cos square theta. Complete equation is equals to कि दूसरी साइड भी और यहाँ भी. So it is sin square theta upon में cos square theta plus cos square theta upon में cos square theta is equals to 1 upon में cos square theta. And we know sin theta upon में cos theta क्या होता है, tan थीटा, एंड 1 अपॉन में cos थीटा क्या होता है, sec थीटा. सो इट बिकम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. ओके, सो वी कैन राइट इट लाइक दैट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. सो दिस इज योर आइडेंटिटी नंबर 2. ओके, ओके देखिए थर्ड आइडेंटिटीज़ भी हम इस फर्स्ट आइडेंटिटी से निकाल लेते हैं. कैसे, जैसे हमने हमारी सेकेंड आइडेंटिटी में इस पूरे को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, तो अब मैं इस पूरे को sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देती हूँ. तो डिवाइड द इक्वेशन नंबर 1 बाय sin स्क्वायर थीटा. सो नाउ इट्स बिकम sin स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा. ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा. हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा. दैट इज द रिवर्स ऑफ द टेन थीटा ना. सो हमारा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है. सो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है? दैट इज द रेसिप्रोकल. साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, राइट? सो इट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा. So these three identities we will use in our exercise 8.4. Please note all these three identities. This is very important identities that we will use. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए. हमें इन तीनों की वैल्यू कॉस ए, टेन ए और सेक ए की वैल्यू साइन ए के टर्म में निकालनी है. तो देखिए कैसे निकालते हैं. सबसे पहले हमें पता है हमारी आइडेंटिटीज़ के थ्रू ही हम कर सकते हैं. कॉस ए को साइन ए के फॉर्म में देखिए, वी नो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. ओके, यहाँ पे लिख दीजिए वी नो. तो हमें कॉस ए, तो मैं यहाँ पर से कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकती हूँ? साइन स्क्वायर ए को दूसरी साइड ले जाती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ओके, now it is the square of cos a. We want the only cos a, so square root on both side. So it is cos a is equals to plus minus 1 minus sin square a. This is cos a term. Now tan a. We know tan a is equals to sin a upon में cos a, राइट? अब ये तो sin a ठीक है, हमें sin a की टर्म में चाहिए. अब इस cos a को मैं क्या करूँ कि वो sin a की टर्म में आ जाए. तो यहाँ पर हमारे इसको यूज़ करके इसको मैं फर्स्ट डाल देती हूँ और यहाँ पर इस cos a की वैल्यू जो आई है sin a अपॉन में रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a डाल देती हूँ. आगे सारी टर्म पूरा ही साइन ए की टर्म में है. तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बाय यूजिंग फर्स्ट. ओके, नाउ सेक ए. सेक ए हमारा क्या होता है? सेक ए का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस रूट में साइन स्क्वायर ए. सो बाय यूजिंग फर्स्ट. ओके, देखिए ये आपका एग्जाम्पल नंबर 13. इसमें क्या है? प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल्स टू 1. इसको हमें इस पूरे को सॉल्व करके ये प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है. तो देखिए अभी हमें जिसके फॉर्मूलाज पता है हमसे पहले उनको उतना ही ओपन करेंगे. जैसे सेक ए का हमें पता है क्या होता है. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, अगर टेन ए है, कॉट ए है, सेक ए है, कॉसेक ए है, तो आप उसका जो फॉर्मूला आपको याद है, जैसे सेक ए का होता है 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, टेन ए का होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो उसको उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ओपन करिए. तो यहाँ पर मैं सेक ए की जगह क्या लिख देती हूँ? 1 अपॉन में कॉस ए. ओके, ये है 1 माइनस साइन ए. नाउ सेक ए को यहाँ पर अगेन 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए. टेन ए क्या होता है? साइन ए अपॉन में कॉस ए. ओके, सो अब देखिए यहाँ पर दोनों के नीचे कॉस ए है, 1 अपॉन में कॉस ए, 1 माइनस साइन ए. तो मैं ऊपर वाले को 1 प्लस साइन ए लिख सकती हूँ एंड अपॉन में कॉस ए लिख सकती हूँ, राइट? अब ये देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी हो गई? a माइनस बी, और a प्लस बी क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? इस कॉस ए इंटू कॉस ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, और ये
1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकती हूँ बाय यूजिंग दैट आइडेंटिटी. दिस इज कॉस स्क्वायर ए. ओके, एंड वी नो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए. कैसे? हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 से. यहाँ बताती हूँ. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है. ओके, एंड 1 माइनस, अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाऊँ तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. राइट. सो कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया? 1. हेंस प्रूव. ओके, नाउ इन दिस अगेन वही मैंने आपको भी बताया था कि हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है. तो मैंने आपको कहा था पहले, सबसे पहले tan a cot a sec a cosec a ऐसा कुछ अगर आपको आता है तो पहले आप उसे ओपन कीजिए. तो cot a को मैं क्या लिख सकती हूँ? cos a अपॉन में sin a. राइट. एंड दिस इज cos a ऑलरेडी है. दिस cos a अपॉन में sin a प्लस cos a. ओके, नाउ अब यहाँ पर से इसमें 1 लिख दो, यहाँ इसमें 1 लिख दो. यहाँ ऊपर से मैं cos a कॉमन ले सकती हूँ. तो ये मैंने cos a यहाँ ऊपर से कॉमन ले लिया. तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन में sin a माइनस 1 रह गया हमारे ब्रैकेट में. cos a ले लिया, ये 1 अपॉन में sin a माइनस 1 रह गया. नीचे से भी ऐसे ही cos a कॉमन ले लिया तो ये 1 अपॉन में sin a प्लस 1 हो गया. cos a से cos a कैंसिल. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? साइन ए 1 से मल्टीप्लाई हुआ, जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो ये 1 माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए हो गया. एंड दिस 1 प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए हो गया. राइट. अब ये साइन ए से ये साइन ए कट जाएगा. एंड वन थिंग, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा ये लिख सकते हो. हमें कॉसेक ए लाना है ना, हमारे राइट हैंड साइड में क्या है? कॉसेक ए. तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉसेक ए होता है. कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस 1. हेंस प्रूव. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा. मतलब हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. और जिसमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमें सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. दैट मीन्स कि हम इसको इस टर्म में लेके चलते हैं कि वो सेक थीटा और टेन थीटा की टर्म में हो जाए. तो मैं क्या करती हूँ? डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर and denominator by cos थीटा. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में cos थीटा. क्योंकि हम पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड करें तो हर एक एक टर्म को डिवाइड करेंगे. प्लस 1 अपॉन में cos थीटा. ऐसे ही डिनोमिनेटर में साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा. ओके, तो यहाँ पर अब ये क्या हो गया? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा. ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ? टेन थीटा और सेक थीटा को एक साथ लिख देती हूँ. टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1. ठीक है, ये हो गया. इसको एक फॉर्म इस तरह से कर देते हैं. अब मैं करती हूँ क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करती हूँ. तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से लिख देते हैं. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा. ओके, क्योंकि ये हमारे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा की, तो इसलिए मैंने इस तरह से लिया है. तो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1. इसको टेन थीटा माइनस सेक थीटा कर सकती हूँ अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा. ओके, अब ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होएगा, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से. अब टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा क्या हो जाएगा?
टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो, और वो होगा 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, राइट। मतलब माइनस इसी के है तो मैं यहाँ पर इसके अंदर ही कर देती हूँ इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको मैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस इधर ही आएगा, ओके, प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ पर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करूँ तो मैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करूँ तो ये क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है तो वो क्या हो जाएगा -1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि ये स्क्वायर है और ये, तो यहाँ पर ये मतलब हमारा क्या रह जाएगा फिर यही बचाएगा 1 प्लस टेन थीटा, ऊपर वाला ही एज इट इज़ लिख देते हैं, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा को एज इट इज़ लिख देती हूँ तो ये 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, ओके। अब ये देखिए कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा। इस टेन थीटा माइनस सेक थीटा में अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो मैं यहीं पर ले लेती हूँ, तो ये माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ये माइनस ये हो गया, ठीक है। तो ये टेन थीटा, जो चलिए यहाँ पर करती हूँ, यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगी, तो इसमें से हमें क्या कॉमन लेना था माइनस कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, राइट। माइनस इसमें से मैंने कॉमन लिया, ठीक है, इस वाले में से, तो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा रहा माइनस सेक थीटा, सॉरी, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा रहा, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, दोनों प्लस की टर्म माइनस की हो गई, माइनस में जो कॉमन लिया है वो आगे लिख देती हूँ, -1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा हो गया, ठीक है। अब ये -1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इससे कैंसिल हो गया, तो ये 1 अपॉन में, अब माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। मतलब माइनस जब ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और यही हमारे राइट हैंड साइड में है, सो इट्स हैंड्स प्रूव। फिर से बता देती हूँ एक बार, ये देखिए यहाँ पर क्या था, ये टेन थीटा माइनस, इस टर्म को या तो आप चाहे तो इसको ऐसे मत करिए, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दीजिए, फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, जब इस वाली टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे तब ये क्या होगा, जो प्लस की टर्म है वो माइनस की हो जाएगी, तो -1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा, और ऊपर भी हमारा यही है -1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो वो कैंसिल हो गए। अब जो माइनस यहाँ से आया था वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी, ये टर्म माइनस की, एंड दैट इज अवर राइट हैंड साइड, ओके। देखिए अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4, मैंने आपके एग्जाम्पल में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन समझाया हुआ है। इसमें क्या करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, कॉट ए की टर्म में। तो हम इजी से स्टार्ट करते हैं, हम टेन ए से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है टेन ए क्या होता है, रिवर्स ऑफ द कॉट ए, सो इट इज़ 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। आगे कॉट ए की टर्म में सेक ए, अब सेक ए को देखते हैं या साइन ए के देखते हैं। साइन ए, देखिए साइन ए क्या होता है हमें पता है, 1 अपॉन में कॉसेक ए होता है, ठीक है। और हमारे पास हमारी आइडेंटिटी है जो कॉसेक ए और कॉट ए को रिलेट करती है, वो कौन सी आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, राइट। तो मैं यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए की जगह, कॉसेक ए की जगह क्या लिख सकती हूँ,
रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया, कॉट ए की टर्म में साइन ए। नाउ अब हम किस में देखेंगे, सेक ए। सेक ए हमें पता है, सेक ए ऐसे ही क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है, राइट। अब 1 अपॉन कॉस ए होता है तो मैं कॉस ए को क्या लिख सकती हूँ, हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो कॉस ए के लिए यहाँ पर जैसे किसी भी तरह से आप इसको कॉट ए के फॉर्म में कैसे कर सकते हो, आप इसको यहाँ पर चाहो तो साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये साइन ए से डिवाइड करेंगे तो नीचे कॉट ए हो जाएगा। चलिए हम ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। मैं आपको यहीं पर करके या लिख के दिखा देती हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ओके। तो ये क्या हो जाएगा फिर हमारा 1 अपॉन में साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। 1 अपॉन में साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, एंड कॉस ए अपॉन में साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है। तो देखिए ये तो हमारा कॉट ए आ गया। अब कॉसेक ए हमने अभी अभी यहाँ पर लिखा है, कॉसेक ए हमारा क्या होता है, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर मैं कॉसेक ए की जगह रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकती हूँ अपॉन में कॉट ए। आ गया कॉट ए की टर्म में आंसर।